अब वो घड़ी आ गई है जिस घड़ी का इंतजार था। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और बहुत हैं विद्वान वक्ता श्रीमान रवि अय्यर जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं और विश्व के कई देशों में आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचार प्रसार किया है 35 से अधिक वर्षों तक। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आएं और संबोधित करें। मंच पर आसीन महानुभावों, उपस्थित सज्जनों, हिंदी में बोलो या इंग्लिश में? शुड आई स्पीक इन इंग्लिश और इन हिंदी और ए मिक्सचर? विदेश से आए हुए सभी लोग हिंदी समझते हैं? नो? ओके, देन आई विल मिक्स. Among the delegates, some have come from Israel. Anybody from Israel? Thank you. In Israel there are 80,000, 80,000 मलयालम, मराठी, गुजराती बोलने वाले people who migrated from Kerala, Maharashtra and Gujarat are living there, 80,000. You know what they say? Israel, many people have migrated from Germany, from Russia, from Spain, different parts of the world, and Indians are also gone there. भारतीय लोग वहाँ क्या कहते हैं? I'll tell this in English and Hindi. वो कहते हैं कि इज़राइल हमारा पितृ देश है, इज़राइल इज़ अवर फादरलैंड, बट इंडिया इज़ अवर मदरलैंड. जरा उनके लिए ताली बजाइए. विदेश में रहते हुए से इज़राइल इज़ माई फादरलैंड बट इंडिया इज़ माई मदरलैंड. भारत मेरी मातृभूमि है. जर्मन विल नेवर से दिस, सेफार्डी जूस विल नॉट से दिस, नो अदर जू फ्रॉम एनी कंट्री विल से, बट ओनली इंडियन जू सेज दिस. और वो क्या कहता है? इज़राइल इज़ इन माई ब्लड, मेरे खून में इज़राइल है, बट मेरे हृदय में भारत माता है. ज़रा तालियां बजाइए. ये जर्मन जू नहीं कहेगा, रशियन जू नहीं कहेगा, इंग्लिश जू नहीं कहेगा, केवल भारत का जू कहता है कि 2000 साल हम भारत में रहे, इतने प्यार से, इतने इज्जत के साथ हमारे साथ बर्ताव किया है भारतीयों ने. दुनिया के किसी भी देश ने जू लोगों के साथ इस प्रकार से अच्छी तरह से बर्ताव नहीं किया. दैट शोज व्हाट इज वसुधैव कुटुंबकम. अब फॉर द सेक ऑफ दोस हु हैव कम, आई विल टेल समथिंग अबाउट मॉडर्न इंडिया. देर आर ओनली 8 countries in the world which are capable of launching intercontinental ballistic missile, a missile that can go to 5,000 kilometers. Out of those 8 countries, India is one. There are only 6 countries who can design and manufacture a modern fighter jet plane. India is one. There are only 5 countries that can manufacture a पनडुब्बी. पनडुब्बी यानी पानी के अंदर जाने वाला. The name of our Pandubbi is Arihanta. That means that goes below the sea with a ballistic missile and nuclear powered. केवल 5 देश है, उसमें से एक भारत है, सबमरीन. There are only 4 countries in the world that have landed on the moon. Bharat is one of them. There are only 2 countries that have the most lethal missile called BrahMos. BrahMos is the most dangerous missile in the world. भारत और रशिया दोनों के पास है, नो अदर कंट्री. तो कई देशों को हमने ब्रह्मोस बेचा है, वियतनाम, इंडोनेशिया, उनको हमने पैसा लेकर दिया है. केवल पाकिस्तान को फ्री में दिया था ऑपरेशन सिंदूर के समय. अब
केवल एक भारत है, इन द एंटायर वर्ल्ड देयर इज ओनली वन भारत। एक रॉकेट पे 104 सैटेलाइट्स वी लॉन्च्ड, ओनली इंडिया। ओनली इंडिया हैज़ landed, has gone into the Mars orbit in the very first attempt, and the cost of that Mars orbit is less than a Hollywood movie, so cheapest in the world. India is the only country that has fought against a nuclear powered nation, Pakistan, and destroyed it within 23 minutes. No country in the world ever dared to attack another missile, nuclear power country. This is India. हमको मालूम होना चाहिए. When you go back, you can tell this to their people. Now, with all that, with all these most powerful weapons, we also say Vasudhaiva Kutumbakam. We stand by it. चाइना ने क्या दिया दुनिया को? कोरोना वायरस. भारत ने क्या दिया दुनिया को? What did India give to the world? Co-vaccine. We produced vaccine and gave to 100 countries in the world. This is Vasudhaiva Kutumbakam. And when we made that vaccine and gave to many countries, later our Prime Minister Narendra Modi went to Papua New Guinea. The Prime Minister waited till late night, and when Prime Minister Modi was coming down from the plane, he bent down and touched his feet. James Marape of Papua New Guinea. They said, why do you do this? We are all Christian nations. We don't touch somebody's feet. You know what he said? जब दुनिया भर में कोरोना आया था, हमने जर्मनी से, फ्रांस से, अमेरिका से, इंग्लैंड से गिड़गिड़ा कर मांगा कि हमको वैक्सीन दो, वैक्सीन दो, वैक्सीन दो. These big powerful countries, they were stocking all their vaccines in their fridge, did not share that with us, saying that a next wave will come, a next wave will come, we have to protect our country. India is one of the largest countries in the world. In spite of it, भारत ने हमको मदद किया उस समय, इसलिए भारत इज विश्व गुरु फॉर अस. भारत से जो भी आएगा मेरे लिए गुरु समान है, मैं उसका पैर छूऊंगा. दिस इज modern India. Today India has made one thing called UPI. You go to any village in India, you purchase whatever you want. Even Macron, when he went to Jaipur, he had a samosa on the street. And how does he make payment? UPI is there in your mobile. So through mobile he is able to transfer. Every country in the world is asking, give us UPI, give us UPI. So this is the मॉडर्न पावर ऑफ इंडिया. भारत आज दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया है. नाउ आई विल कम टू हिंदी. इफ समबडी आस्क्स विच इज़ द मोस्ट अंडरस्टूड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, नंबर 1 इंग्लिश, नंबर 2 चाइनीज मैंडरिन. व्हाट इज नंबर 3? हिंदी. हिंदी इज spoken by more than 60 crore people, 600 million people. और ये हिंदी 100 देशों में 700 संस्थाओं के माध्यम से, यूनिवर्सिटी के माध्यम से हिंदी सिखाया जाता है, प्रचार किया जाता है. 760 करोड़ लोग हिंदी समझते हैं. भारत के और दुनिया के बहुत प्राचीन भाषा संस्कृत है. और संस्कृत के आप जर्मनी में जाएंगे, जर्मनी के भाषा देखेंगे, संस्कृत मिलेगा. आप इंडोनेशिया जाएंगे, वहाँ संस्कृत मिलेगा. आप मलेशिया में जाएंगे, थाईलैंड में जाएंगे, चाइना में जाएंगे, दुनिया के 450 भाषाओं में घर में जब वो बात करते हैं, बिना पता हुए ही संस्कृत के शब्द का उपयोग करते हैं. 42% of the people in the world, when they speak their language at home, whether it is Spanish or Portuguese or German, or it is South Asian countries' languages,
Inadvertently, knowingly, unknowingly, they are speaking words from Sanskrit. So this is our soft power. Similarly, if you go into Korea, पता नहीं कोरिया से कोई आए हैं क्या, कोरिया भाषा में 500 प्राचीन कोरिया भाषा में तमिल शब्द है. If you stand in a marketplace in Korea and when they are talking to each other, half the words you can understand. Appa is father, Amma is mother in Korean language. कुछ और एक बात, इधर पहले नृत्य हुआ था. दुनिया के बहुत सारे देशों के नृत्य देने वाले भारतीय थे आज से 1000 साल पहले. 1000 years before, the Sindhis and the Rajasthanis, they migrated from India to Asian countries, जिसको वेस्ट एशिया कहते हैं, and from there they went to Hungary, they went to रोमानिया, बल्गेरिया, मैसेडोनिया. आज यूरोप में प्राचीन काल में जो माइग्रेट करके गए 2 करोड़ भारतीय राजस्थानी लोग हैं, जिनको वो लोग जिप्सी कहते हैं, रोमा कहते हैं. द इन्फ्लुएंस ऑफ द जिप्सी गेव राइज टू द म्यूजिक इन यूरोपियन कंट्रीज, लिटरेचर इन यूरोपियन कंट्रीज, गेव राइज टू डांसेस इन देयर कंट्रीज. हम में से किसी को मालूम भी नहीं. इनके ऊपर हम लोगों ने रिसर्च करना चाहिए. स्पेन का सबसे अच्छा जो डांस होता है उसको फ्लेमिंको कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो ए गिफ्ट फ्रॉम राजस्थान. अब इफ़ यू, मुकेश एक समय का पार्श्व गायक था हिंदी फिल्मों में. उसका जो आवारा पिक्चर था वो भारत से ज़्यादा रूस में लोकप्रिय हो गया. और वहाँ अगर कोई मुकेश के आवाज़ में मॉस्को में खड़ा होकर गाना गाता है, ट्रैफिक जैम हो जाएगा. मलेशिया से कुछ लोग आए. मलेशिया में आप मुकेश के गाने मलेशिया के पिक्चरों में सुन सकते हैं. आज भी लोग गदगद हो जाते हैं मुकेश के गाना सुनकर. और एक मज़ेदार बात बताता हूँ. भारत में मुख्य रूप से तमिलनाडु में एक सुपर हीरो है, उसका नाम है रजनीकांत. असली नाम है उसका शिवाजीराव गायकवाड़, लेकिन लोग उनको रजनीकांत के नाम पे जानते हैं. आप अगर अपने चेहरे पे एक मुखौटा डाल लीजिए रजनीकांत का और टोक्यो शहर में खड़े हो जाएंगे, ट्रैफिक जैम हो जाएगा. तमिल पिक्चर तमिलनाडु में चलेगा कि नहीं, लेकिन 100 दिन 200 दिन जापान में चलते हैं. एक बार मैं कुछ जापानीज लोगों को टोक्यो में मिला था. उनसे बात करता था, मैं तमिल में पूछ रहा हूँ, वो तमिल में उत्तर दे रहे हैं. तो इसका मतलब वो तमिलनाडु में 6 महीने 7 महीने 8 महीने रुके होंगे, इसलिए इतनी सरलता से तमिल बोलते हैं. तो उसने बोला कि नहीं, हर साल हम जाते हैं 1 दिन के लिए और वापस आते हैं. कितने लोग जाते हैं? एक प्लेन भर के वो लोग यहाँ आते हैं. किस लिए आते हैं? 1 दिन के लिए कोई लाखों रुपया खर्चा करके जाएगा? नहीं, हम लोग वहाँ 1 दिन जाते हैं, दूसरे दिन सुबह रात को एक सुपरस्टार 5 स्टार होटल में रुकते हैं. दूसरे दिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो रजनीकांत. वो पिक्चर देखकर सीधा वापस आते हैं. और पिक्चर बार बार देखकर हमने पूरा तमिल भाषा सीख लिया है. दिस इज़ द पावर ऑफ आवर लैंग्वेज, दिस इज़ द पावर ऑफ आवर कल्चर. और लास्ट आई विल टेल यू ओनली वन थिंग अबाउट हिंदी. जॉर्जिया नाम का एक शहर है, वहाँ का जो चर्च में हर रविवार को लोग एकत्र आते हैं, तो वहाँ का पादरी का नाम है एडी स्मिथ. और एडी स्मिथ सब लोगों को बोलता है कि बोलो नमस्ते. नमस्ते तो हिंदी शब्द है, तो सब लोग नमस्ते कहते हैं. जोर से बोलो नमस्ते नमस्ते नमस्ते. जोर जोर से नमस्ते कहता है. नमस्ते का मतलब वो समझाता है चर्च में कि नमस्ते का मतलब है द डिविनिटी विथ इन मी सल्यूट्स द डिविनिटी विथ इन यू. मेरे अंदर जो भगवान है, आत्मा है, तुम्हारे अंदर जो आत्मा है उसको मैं नमन करता हूँ. और वो यह भी कहता है कि हर 3-4 महीने में 6 महीने में अमेरिका में स्कूल में कोई एक छोटा बच्चा आता है गन लेकर
धाड़ 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 शूट करता है, लोग सब बिन कारण मर जाते हैं। ये बहुत ही खराब है। लेकिन क्या है, एक अमेरिकन दूसरे अमेरिकन से मिलता है तो हाय कहता है। हाय में कुछ भी अर्थ नहीं निकलता है। जब तक दुनिया के सारे लोगों को समझ में आएगा कि तुम्हारे में एक आत्मा है, मेरे में आत्मा है, तब तक ये वायलेंस रुकेगा नहीं। जब तक हिंदी का प्रचार, नमस्ते का प्रचार दुनिया भर में नहीं जाएगा, दुनिया में शांति नहीं आ सकती। धन्यवाद। जय श्री राम।